Hello everyone, welcome to my channel, and today I am going to discuss about the thoughts of S.T. Coleridge regarding literary criticism, or we can say that today's topic is literary criticism of S.T. Coleridge. But before starting the video, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and hit the bell icon for the latest updates of the videos. So this topic is going to be a very important topic in terms of your examinations, including your graduation level as well as in BHU, JNU and DU post-graduation entrance test. Because after watching this video, you will be able to answer each and every question related to this particular topic. So at first, let's check out S.T. Coleridge in brief. As you all may know about him, that S.T. Coleridge was one of the great poets of Romantic period, including his friend William Wordsworth. And he helped William Wordsworth to take out the spirit of Romanticism again after 100 years of neoclassical period. His full name was Samuel Taylor Coleridge, and he was an English poet, literary critic, philosopher and theologian. थियोलॉजियन उन्हें बोलते हैं जिन्होंने स्पेसिफिक रिलीजन की पढ़ाई की होती है, किसी धर्म के बारे में स्पेसिफिकली उसके धर्म ग्रंथ और मान्यता, इन सभी के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी रहती है. हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, कुबला खान, क्रिस्टाबेल, एंड हिज क्रिटिकल वर्क वॉज बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसे उन्होंने 1817 में 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया था. इस किताब में टोटल 23 चैप्टर्स हैं और इसी किताब के थ्रू हमें उनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में, उनके क्या स्टैंड्स और थिंकिंग रहे हैं, इन सभी का पता चलता है. इसी किताब के द्वारा उन्होंने व्हीलिंग सस्पेंशन इन डिसबिलीफ इस टर्म को क्वाइन किया था और हम इस टर्म के बारे में आगे और अच्छे से जानेंगे. आफ्टर रीडिंग हिज क्रिटिकल वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, we come to a conclusion that Coleridge is the first English critic to base his literary criticism on philosophical principles. It means that Coleridge पहले ऐसे English critic थे जिन्होंने किसी वर्क को एनालाइज करने का बेस उस लिटरेरी वर्क के वर्ड्स, लाइंस, स्ट्रक्चर या उसके ऑथर के इंटेंशन तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि लिटरेरी वर्क को एक फिलोसफिकल माइंड के साथ एनालाइज करने का सोचा था. He rightly described himself as indolence capable of energy. Coleridge's political criticism revolves around the theory of creative imagination discussed in chapter 13 and 14. उनका political criticism theory of creative imagination के चारों ओर घूमता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे और जिसे उन्होंने chapter number 13 and 14 में बताया है. So here is the content of Biographia Literaria. And the contents are fancy and imagination, primary imagination and secondary imagination, poetic talent and poetic genius, wheeling suspension of disbelief, Coleridge's opinion on Wordsworth theory of diction, Biographia Literaria, जिसका पूरा नाम है Biographical Sketch of My Literary Life and Opinions. और इस किताब को लिखने से पहले उन्हें जिन चीज़ों ने इंस्पायर किया था वो है विलियम वर्ड्सवर्थ और उनका थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन एंड पोएटिक डिक्शन, एंड सेकेंड जर्मन ट्रांसेंडेंटलिस्ट थिंकर्स लाइक केंट एंड शेलिंग. ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 20th सेंचुरी में, उसके लीड R.W. इमर्सन भी S.T. कॉलरिज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. ट्रांसेंडेंटलिज्म के अनुसार हम कुछ भी जो सीखते हैं उसका कारण हमारा अपना एबिलिटी है, जिसके थ्रू हम लोग कुछ सीख पाते हैं और हम किसी रीजनिंग यानी तर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमारे अंदर जो कुछ भी मिस्ट्री सॉल्व करने की जो इच्छा होती है वही मदद करती है किसी चीज़ को तुरंत सीखने में. So we'll discuss about the transcendentalism another day, and now come to our own topic. S.T. Coleridge was very much influenced by this theory of transcendentalism of 2 German thinkers named Kant and Schelling. इसके अलावे S.T. कॉलेरिज डेविड हार्टले और उनका एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इन सभी का प्रभाव हमें क्रिटिकल वर्क यानी कि बायोग्राफिया लिटरेरिया में देखने को मिलता है. S.T. कॉलरिज के क्रिटिकल थ्योरीज़ में जो पहला थ्योरी हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है फैंसी एंड इमेजिनेशन. बाकी के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.
So, in earlier days, the term fancy and imagination were used interchangeably, but it was Coleridge who said that the fancy and the imagination are two different faculties of human mind. पहले के लोग फैंसी और इमेजिनेशन को लगभग एक जैसा ही मानते थे और इसीलिए एस.टी. कॉलरिज ने इन्हें इंटरचेंजेबल कहा है, यानी कि वेरी सिमिलर और आइडेंटिकल। तो लोग ऐसा ही मानते थे। अभी के लोग भी फैंसी और इमेजिनेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगता है कि दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और उनके क्या अपने अपने यूजेस हैं, इसी बात को एस.टी. कॉलरिज ने इस थ्योरी में बताया है। फैंसी merely assembles and juxtaposes images without transforming them। फैंसी का मतलब है किसी भी चीज़ या इमेज को उसी के रूप में देखना या मान लेना जैसा कि वो वास्तविक रूप में है, उसमें खुद के मन से कोई भी बदलाव करके ना देखना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वुड हैव क्लियर इमेज ऑफ द पर्सन और द थिंग इन योर माइंड एंड अनेबल टू फॉरगेट देम, सो इफ़ यू से दिस पर्सन हैज़ कॉट योर फैंसी और दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ कॉट योर फैंसी, यानी कि जैसे अगर आपके माइंड में किसी भी इंसान या चीज़ का एक क्लियर इमेज है और आप उस इंसान या उस चीज़ का इमेज जो आपके माइंड में है उसे भूल नहीं पाते और वो एकदम वैसा का वैसा ही है, इसका मतलब है कि उस चीज़ या इंसान ने आपके फैंसी को कैच कर रखा है। यानी कि यहाँ हम इस स्थिति को फैंसी बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे रेड रोजेज़ का बुके बहुत पसंद है और ये मेरे माइंड में है कि रेड रोज़ कितना सुंदर है, तो ये मेरा फैंसी है जो कि मुझे फ़ील हुआ है रेड रोजेज़ के लिए। और इसे मैंने फैंसी इसलिए बोला क्योंकि मैंने अपने मन में उसमें बदलाव नहीं किया। जैसे कि रेड रोजेज़ जो मुझे पसंद है वो तो रियलिटी में भी रेड ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो असल में काले हैं और मेरे मन ने उसे मान कर एज्यूम करके रेड सोच लिया और उसे पसंद कर लिया, ऐसा नहीं है। तो इस स्थिति को हम फैंसी बोलेंगे, यानी कि वो नॉर्मली भी वैसा ही है और मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा तो मुझे उस चीज़ के लिए फैंसी है। उस स्थिति को हम लोग फैंसी बोलेंगे। तो आई होप आपको फैंसी समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज डिफाइंड एज मॉडिफाइंग पावर। कॉलरिज ने उसे बताया है कि इमेजिनेशन यानी कि कल्पना एक मॉडिफाइंग पावर है। मॉडिफाइंग पावर यानी कि जिसका यूज करके हम किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से, ऑफकोर्स हमारे मन में ही अपने हिसाब से सोच कर बदल सकते हैं और कोई भी बदलाव ला सकते हैं। It can transform the images into a new whole entity. In contrast to fancy, imagination is creative. Imagination किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के इमेज को नया रूप दे सकता है और इसीलिए कॉलरिज ने इसे क्रिएटिव कहा है। जैसे कि अगर आप कभी लगातार बादलों को देखते रहो तो अचानक आपको लगेगा कि ये बादल कोई आकार बना रहे, किसी तरह का शेप फॉर्म कर रहे हैं, जैसे किसी जानवर का या किसी बर्ड्स का। उस आकार को जो हम देख पा रहे हैं बादलों में, ये हमारा इमेजिनेशन है, क्योंकि ऐसा है नहीं, वो तो सिर्फ क्लाउड्स हैं, बट मुझे क्या दिख रहा है उसमें, कोई शेप। तो ये हमारा इमेजिनेशन है। अब हम कुछ पॉइंट समझते हैं जिसमें फैंसी और इमेजिनेशन में डिफरेंसेस बताया गया है। सो फैंसी, व्हेन द पीस ऑफ वर्क इज सब्स्टिट्यूटेड बाय समथिंग्स ऑफ पोएट्स ओन इन्वेंशन, इट वुड बी वर्क ऑफ फैंसी। अगर कोई वर्क पोएट का लिखा है और उसका रेफरेंस हमें मिलता है तो उस वर्क को फैंसी मानेंगे, क्योंकि वो किसी चीज़ को देखकर या उससे प्रभावित होकर उस वर्क को लिखा है उन्होंने, तो इस वर्क को हम लोग फैंसी मानेंगे। एंड व्हेन द वर्क इज़ फेथफुली इमेज्ड द ओरिजिनल, इट वुड बी वर्क ऑफ इमेजिनेशन। और जब कोई वर्क पूरी तरह से कल्पना पर आधारित हो और उसका वास्तविकता यानी कि रियलिटी से कोई भी लेना देना ना हो, तो उस वर्क को हम इमेजिनेशन मानेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एक इमेजिनेटिव वर्क है क्योंकि उसका रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है और हम ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ को देखकर जेके रॉलिंग ने उसे इंस्पायर्ड होकर हैरी पॉटर लिखा। बल्कि वही दूसरी जगह अगर हम किसी भी पर्सन के बायोग्राफी को लिखते हैं तो वो ऑब्वियसली उससे इंस्पायर्ड होता है, तो उसे हम फैंसी वर्क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फैंसी में उस इंसान को बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा कि वो काफ़ी अच्छा था, ऐसा था वैसा था। तो हम लोग उसके लिए या तो अच्छा फैंसी यूज़ कर सकते हैं या बुरे भी फैंसी को यूज़ कर सकते हैं, तो वो फैंसी का वर्क कहलाएगा और हैरी पॉटर इमेजिनेटिव वर्क कहलाएगा। फैंसी सीज द आउटसाइड और एक्सटीरियर। फैंसी बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और हम उस चीज़ों को देखकर उसके लिए फैंटेसाइज करते हैं। लेकिन इमेजिनेशन सीज द हार्ट एंड इनर नेचर।
और इमेजिनेशन इनवर्ड होता है, ये हम अपने मन में कल्पना कर लेते हैं जिसका अवसर से कोई रिलेशन नहीं है। फैंसी रीशेप एनी वर्क मोर और लेस विलफुली। फैंसी में हम किसी भी वर्क को रीशेप करते हैं अपने मनमाने तरीके से, लेकिन उसका रियल क्रिएचर वैसा ही रहेगा, उसका रियल एग्जिस्टेंस वैसा ही रहेगा, बस हम उसको अपने मन से रीशेप कर सकते हैं। जबकि इमेजिनेशन फ्यूज ऑल द थिंग्स इनटू वन, मेकिंग देम टेक वन कलर एंड सर्व टू वन इफेक्ट। इमेजिनेशन अपने मन में कई सारी चीज़ों को सोचकर उसे नया रंग और रूप देता है, जिससे एक नया तरह का इफ़ेक्ट जनरेट होता है और उसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन में हम लोग बहुत तरीके का चीज़ को सोचते हैं और उसका नया रूप भी दिखता है हमें, तो वो इमेजिनेशन कहलाएगा, बिल्कुल नया एंटिटी फॉर्म होता है। जबकि फैंसी सिर्फ रीशेप कर सकता है किसी भी चीज़ को, उसका एकदम जो मेन चीज़ है वो रहेगा ही, और इमेजिनेशन बिल्कुल न्यू एंटिटी को फॉर्म कर देता है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज द क्रिएशन ऑफ द फैंसी इज ओनली ब्यूटीफुल। फैंसी के द्वारा जो कुछ भी हम बनाते हैं वो केवल सुंदर होता है, वो बस मन को फैंटेसाइज कर सकता है, वो हमें दिखने में बहुत अच्छा लग सकता है। लेकिन द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन वर सबलाइम, और कल्पना से जो हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, जो हमारा इनर आउटवर्ड नहीं बल्कि जबकि इनवर्ड जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कल्पना करते हैं, और उससे जो हमारा क्रिएशन होता है उसे कॉलरिज ने सबलाइम कहा है। यह सबलाइम से उनका कहना है जो कि एक्सट्रीम हाई क्वालिटी का हो और एडमायरेबल हो, यानी कि जिसकी तारीफ़ की जा सके, और वो एकदम एक्सट्रीम हाई क्वालिटी का क्रिएशन कहा है एस.टी. कॉलरिज ने। सो ये जो डिफरेंसेस हैं फैंसी और इमेजिनेशन में, वो आपको मे बी समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।